Hello friends, welcome to iExamB. I am Vidhika, an ex-bank PO, and today I am going to talk about one important area of your general awareness which forms part of your banking awareness, and that is important banking laws. आप जनरल एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको इन डेप्थ इन लॉज के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, बट यू शुड नो द की एस्पेक्ट्स, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वेरियस बैंकिंग एक्ट्स. अब कौन कौन से बैंकिंग एक्ट्स हैं? The very first one is your Reserve Bank of India Act 1934, then Banking Regulation Act, Negotiable Instruments Act, SARFAESI Act, Bankers Books Evidence Act, Integrated Ombudsman Scheme. Then there is Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institutions Act. Then the next important one is Payment and Settlement System Act, FERA versus FEMA, PMLA. इस वीडियो में हम लोग सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में पढ़ेंगे. Why this act was enacted, what is the purpose of this act. इस एक्ट के आने के बाद रिकवरी ऑफ लोन्स का प्रोसेस कैसे बेटर हुआ. अब सरफेसी एक्ट 2002 में आया था, तो क्या उससे पहले लोन्स रिकवर नहीं होते थे? तो अब हमें इतना आइडिया है, मेन पर्पस ऑफ सरफेसी एक्ट इज रिकवरी ऑफ लोन. ऐसा नहीं है कि 2002 से पहले रिकवरी नहीं होती थी. सबसे पहले रिकवरी का प्रोसेस कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू होता था, जिसमें बैंक्स सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते थे इन ऑर्डर टू रिकवर द लोन. बट ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. मोर ओवर कोर्ट्स वर अ लिटिल बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कस्टमर, तो बैंक्स को रिकवरी प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता था. Then, Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act was established in 1993, जिसके थ्रू two tribunals were established, Debt Recovery Tribunal and Debt Recovery Appellate Tribunal. इनका पर्पस था कि अब सिविल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर रिकवरी ऑफ लोन के केसेस हैं तो डायरेक्टली डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं. इस एक्ट में एक टाइम लिमिट भी मेंशन है. DRT and DRAT both have to solve their respective cases within 6 months, extendable to 6 months. तो मान लो एक लोन रिकवरी का केस है, वो DRT के पास गया, 6 months मिनिमम, एक्सटेंडेबल टू 6 months, तो इसमें 1 year हो गए. उसके बाद फिर DRAT में अपील जाती थी, तो इसमें भी 6 months एंड देन एक्सटेंडेबल टू 6 months, तो इसमें भी 1 year हो गया. And due to the pendency of cases, due to the large number of loans going NPA, dependency of the cases began to increase a lot. As a result, 2002 में सरफेसी एक्ट इनैक्ट हुआ, जिसके थ्रू रिकवरी ऑफ लोन का प्रोसेस इजी कर दिया गया. What is the process of recovery of loan under सरफेसी एक्ट? ये हम आगे बढ़ते हैं. First of all, what does this SARFAESI stands for? In order to understand this term, we will divide it into three parts. S, which stands for securitization, then RFA, which stands for reconstruction of financial assets, and ESI, which says enforcement of security interest. Let's take an example and try to understand why is SARFAESI Act needed, what are the various institutions that are present under SARFAESI Act. Now let's take a company PQR Limited. This company wants to start a business. This company therefore needs capital and it approaches a bank for a loan. It asks for a loan of 500 crore. अब बैंक बिना बात के 500 करोड़ तो PQR लिमिटेड को नहीं देगा. बैंक सेज व्हाट आर यू गिविंग मी एज मॉर्टगेज, किसके बेसिस पे मैं आपको 500 करोड़ का लोन दूं. In that case, PQR Limited mortgages one of its property. बैंक इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाता है and finds out that the worth of this property is 500 crores. Therefore, bank agrees to give a loan of 400 crores to PQR Limited, which is around 75 to 80% of the valuation amount. Now, PQR Limited starts its business with this money and start paying the monthly installments. But due to certain circumstances, PQR Limited अपनी EMIs regularly नहीं pay कर पाता. In that case, this loan gets defaulted. मतलब लोन NPA हो जाता है. अब बैंक को उस लोन को रिकवर करना है जो NPA हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. बैंक के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कस्टमर से डिपॉजिट लेना, कस्टमर्स को लोन्स और एडवांसेस देना. अब अगर बैंक रिकवरी के प्रोसेस में लग गया
तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने टू प्राइम फंक्शन से डिविएट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर मी. आई एम अ लॉ प्रोफेशनल. आई एम एनरोल्ड विद द बार काउंसिल. सो आई एम एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन कोर्ट एज एन एडवोकेट. अब अगर मेरा एक केस है और मुझे वो केस किसी कोर्ट में जाकर आर्ग्यू करना है, तो मैं खुद भी कर सकती हूँ. बट अगर मेरा फोकस मेरी लिटिगेशन पर शिफ्ट हो गया, देन आई मे डिविएट फ्रॉम माई रोल ऑफ अ फैकल्टी हियर, फ्रॉम माई रोल ऑफ टीचिंग हेयर, और मुझे लिटिगेशन का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है. देन आई कैन गो एंड हायर एन एडवोकेट to argue that case on my behalf, and I will perform my primary function here, which is of teaching. इसी तरीके से बैंक अपने प्राइमरी रोल से डिविएट ना हो तो बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच करता है, विच विल हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट. दैट इज वो फाइनेंशियल एसेट जो एनपीए हो गया है, उसको रिकवर करने के लिए बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच करेगा. So till now, from this scenario, we can understand that there are certain preconditions for enforcing the rights under SARFAESI. The first one is जो debt है वो secured debt होना चाहिए. It should be backed by some security or mortgage. Second thing is debt should have been classified as NPA by banks. When the debt is classified by non-performing asset, then only the SARFAESI Act can be introduced. Then only the proceedings under SARFAESI can be introduced. The third one is with respect to the outstanding dues. Minimum 1 lakh rupees के dues outstanding होने चाहिए या फिर 20% of the principal amount and interest thereon. For example, अगर 10 lakh का लोन है तो minimum अभी 20% of the loan should be due. That means 2 lakh. So one thing is या तो minimum 1 lakh हो या उससे ऊपर हो, and second thing is more than 20% of the principal amount and interest. अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट है तभी सरफेसी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. एंड द फोर्थ वन इज सरफेसी कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स. द सिक्योरिटी शुड नॉट बी एन एग्रीकल्चरल लैंड. नाउ लेट्स गो टू आवर सिचुएशन. PQR लिमिटेड डिफॉल्ट कर चुका है. The loan has become NPA. Now the bank approaches an asset reconstruction company limited. अगर कोई asset reconstruction company नहीं है तो बैंक एक asset reconstruction company बना भी सकता है, बट वो asset reconstruction company एक separate company होगी registered under the Companies Act. वो asset reconstruction company उस बैंक के लिए ही सिर्फ काम नहीं करेगी, उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास बाकी सब बैंक्स, बाकी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ लोन. जिस बैंक का किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 10% से ज्यादा स्टेक होता है, दैट मीन्स 10% से ज्यादा पेड अप इक्विटी कैपिटल होता है, उसे स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का. सपोज SBI वाज अ बैंक जिसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एस्टैब्लिश की थी, बट ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी SBI के डायरेक्शंस के अंडर काम नहीं करेगी. दिस विल वर्क अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ RBI. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैदा तो बैंक ने किया है, बट उसे RBI अडॉप्ट कर लेता है. RBI के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क करेगी. दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. अब वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस NPA लोन को एक्वायर कर लेगी बैंक से, इन इजी टर्म्स खरीद लेगी, एंड द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल देन ऑप्ट फॉर वेरियस मेजर्स टू रिकवर दिस लोन और टू रिकंस्ट्रक्ट दिस फाइनेंशियल एसेट. बट इन ऑर्डर टू एक्वायर this huge loan of 400 crore, asset reconstruction company also needs money. For that, asset reconstruction company will look for investment from the market. By introducing certain schemes, asset reconstruction company will approach qualified buyers. Qualified buyers or qualified institutional buyers. Now who are they? They are cash rich institutions. इनके पास बहुत पैसा है. For example, insurance companies, finance corporation, national or state finance corporations, highway authorities, which have a lot of finance with them. Asset reconstruction company will approach these qualified buyers through certain schemes. Those schemes could be related to division of profit or payment of certain monthly interest or payment of certain amount. So those investment schemes can vary.
अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिटर्न में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सिक्योरिटी रिसीट्स देती है. सिक्योरिटी रिसीट्स आर काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो ये मेंशन करते हैं दैट दिस इन्वेस्टमेंट विल बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ सच एंड सच लोन विच इज बैक्ड बाय सच एंड सच सिक्योरिटी. सच अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड, मतलब एक किस्म का एक रिसीट है जो स्पेसिफाई कर रहा है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में उनको ये रिसीट ऑफर की गई है. नाउ दिस प्रोसेस by which the asset reconstruction company acquires the NPA loan by seeking investment from the qualified buyers through certain schemes and in return issue security receipts to the qualified buyers. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन. Once this NPA loan has been acquired by the asset reconstruction company, then the second phase starts, which is RFA, reconstruction of financial asset. There are various measures जो एक asset reconstruction company opt कर सकती है. सबसे पहला वो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को टेक ओवर कर ले, जो बिजनेस की मैनेजमेंट थी उसको चेंज कर दें सो दैट न्यू मैनेजर्स कैन ब्रिंग न्यू स्किल्स और वो बिजनेस को रीस्टार्ट करें, वो बिजनेस को एक डिफरेंट फॉर्म में मैनेज करें सो दैट वो बिजनेस चल सके और उससे रिलेटेड लोन को पे ऑफ किया जा सके. द सेकेंड थिंग कुड बी सेल और लीज ऑफ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस. अब मैनेजमेंट चेंज कर दी बट स्टिल कुछ नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है लोन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी का कोई पार्ट बेच दिया जाए या उसको लीज ऑफ कर दिया जाए और उसके रेंट अमाउंट से लोन रिकवर करने की कोशिश की जाए. द थर्ड वन कुड बी रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स बाय द बोरोअर. तो अब अगर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बोरोअर को बुला फॉर डिस्कशन दैट द लोन हैज बिकम एनपीए, वेदर यू विल पे इट और नॉट. सपोज ए इज द बोरोअर. बोरोअर आके कहता है कि मेरी 20,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट थी बट ड्यू टू सच एंड सच सर्कमस्टांसेस मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई है और अब मैं आपको 20,000 पर मंथ नहीं पे कर सकता. एंड लेट्स से उसको अभी 5 years और पे करना था 20,000 पर मंथ. इन दैट केस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोरोअर को कहती है कि आप अच्छा ऐसा करो 10,000 पर मंथ पे कर दो फॉर 10 years और इस तरीके से आपका लोन रिकवर कर लेते हैं. So the asset reconstruction company has rescheduled the payment of debts by the borrower. The next one could be enforcement of security interest. ये एक अलग चैप्टर है and this is the third term of SARFAESI, ESI, enforcement of security interest. इसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती हैं बाय टेक ओवर. एक नोटिस भेजा जाता है बोरोअर को, उस नोटिस में मेंशन होता है कि अगर आपने 60 days के अंदर अपना लोन पेमेंट नहीं किया then all the rights for the enforcement of security interest can be initiated. मतलब सरफेसी की प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट की जा सकती है जिसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपके एसेट आपकी सिक्योरिटी को एक्वायर कर सकती है, उसे एक्वायर करके उसे सेल ऑफ भी कर सकती है. एंड वाया दैट दे कैन टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट. They can also convert any portion of the debt into shares of a borrower company. तो अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व है और उन्होंने लोन लिया हुआ है जो एनपीए हो गया है, उस डेट को शेयर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ द क्रेडिटर्स हैव बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव बिकम ओनर्स ऑफ द कंपनी. दिस वाज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सरफेसी एक्ट. अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्ड से दो टर्म्स बहुत कॉमनली आजकल न्यूज में है. वन इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, and the another one is IDRCL, which is India Debt Resolution Company Limited, more commonly known as the concept of bad bank. Do you know what is a bad bank? What is the concept of this bad bank? Why was NARCL established when already there are so many asset reconstruction companies present in our country? What is the role of NARCL? What is the role of IDRCL? अगर आपको बैड बैंक, NARCL, IDRCL के बारे में नहीं पता है and you want more clarification on this area which is related to the SARFAESI Act, then drop your query in the comment below and in my next video I will try to take up this topic. Otherwise, in the next video we will discuss about the key areas of Negotiable Instruments Act. iExamB helps you unfold your potential. If you like this video, subscribe to our channel,
You can also call us for any of your queries on this number mentioned on the screen. You can drop your queries in the comment box below. If you are specifically preparing for law exams for IBPS SO Law or SEBI Legal, subscribe to LegalBee YouTube channel. This is your one-stop solution for all legal exams. Thank you.